तो हमने प्रीवियस वीडियो क्लास में डिस्कस किया अबाउट द मिक्स डिजाइन एंड दिस इज क्लास नंबर 2 और पार्ट नंबर 2 ऑफ द कंक्रीट मिक्स डिजाइन। ओके, सो इस कंक्रीट मिक्स डिजाइन को हम लोग कुछ इस तरीके से देखेंगे कि भाई हमारी अगर डिजाइन स्ट्रेंथ अगर एग्जामिनर देता है, जैसे कि उसने ग्रेड दे दिया मान लीजिए, तो ग्रेड के ऊपर आधारित ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेड of the concrete required, how much amount of the strength will be required, that basically we have to on the basis of that particular strength, that may be the characteristic strength, that may be the design target mean strength, तो उसके आधार पर how the calculations for different ingredients, likewise the cement, the coarse aggregate, the fine aggregates, water, the superplasticizers admixtures will be calculated. Okay, so I am discussing with you people the two examples. The first one is the, you can say, purely cementitious compound, likewise the ordinary Portland cement OPC, and second one is called as the PPC, that is Portland pozzolana cement. So in PPC basically fly ash will also be used, and in OPC only the cementitious compound will be used. Okay, so only the difference in between these two examples will be likewise in the first example where the OPC will be used, only we have to calculate the cementitious compound for the cement material per cubic meter of the concrete. However, if I am talking about the second example, that is the annexure number B of IS code number 10262, and first example is the annexure number A of IS code number 10262, the latest IS code and latest revised in the year 2019. Okay, so in these two basic examples I have taken from the IS code number 10262. Okay, so let's discuss about the, or please put the main heading, the concrete mix design as per the latest IS code. Please put the main heading, concrete mixed design as per IS 10262 2019 लेटेस्ट। हाँ जी, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अवर एनेक्चर नंबर 6 और एनेक्चर ए क्लोज नंबर 6 ऑफ IS कोड 10262. सो इन जनरल आई एम फॉलोइंग दिस कोड. ओके, अब आपके माइंड में डाउट आया होगा, सर आपने यही एग्जांपल क्यों उठाया? बिल्कुल सही बात है बेटा, बेटा करने को तो हम लोग M80 का डिजाइन भी कर सकते हैं, डिफरेंट डेवलपर्स के. आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स, है ना, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. डिफरेंट रेप्यूटेड डेवलपर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. DLF का है, गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड का है, गैरन टंकरली लिमिटेड का है ना, और आपका टार्क कंपनी है, फॉरेस्ट बिल्डर्स है, इलान ग्रुप है, इमार ग्रुप है. लॉट ऑफ बिल्डर्स आर देयर इन दिल्ली NCR. किसी का भी एग्जाम्पल आप डिस्कस करेंगे, मेरे पास डेटा है. अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी, देखिए मैं भी यहां पर M40 ग्रेड का डिजाइन करवा रहा हूं, बिकॉज डिजाइन मिक्स आपका M5 ग्रेड का भी होगा, M7.5 ग्रेड का भी होगा, और M25 के बाद M30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. अभी तक हम लोग इंडिया में M80 ग्रेड तक यूज करते हैं. Initially M80 grade was basically used in Delhi metro in basically you can say the airport line nearby the Vasant Kunj area. In India, the M80 grade was initially used at that particular location for the basically you can say construction of the pillars of the Delhi metro in Delhi Aerocity line. Airport express line is there, है ना, nearby Delhi Aerocity area. Okay.
इनिशियली दैट वाज यूज्ड इन द ईयर ऑफ 2013, 2013 में यूज हुआ था। बट उस टाइम पर IS 456 ये बोलता था कि मैक्सिमम ग्रेड आप M25 यूज कर सकते हो। तो भैया M80 ग्रेड कहां से यूज कर लिया? मे बी हो सकता है उस टाइम पर गवर्नमेंट ने ब्रिटिश कोड्स को फॉलो किया हो, यूरो कोड्स को फॉलो किया हो, एंड जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक वाइज जापान जो भी कोड फॉलो करता है, यूनाइटेड किंगडम, USA, तो ये सारी कंट्रीज बेसिकली अमेरिकन सोसाइटी फॉर द सिविल इंजीनियर्स ASCE के जनरल कोड्स को फॉलो करती हैं। ब्रिटिश कोड्स बोल सकते हैं, यूरो कोड्स बोल सकते हैं। However, if I'm talking about basically Dubai or you can say the UAE, United Arab Emirates is also a developed country nowadays. भाई पिछले 20 साल में हिस्ट्री में क्या था उसको छोड़ दीजिए। So in the Gulf countries likewise the Qatar, Oman, Yemen, Osmania, है ना, आपका दुबई, UAE, रियाद, इन सब में आपका जो कोड यूज होता है बेसिकली दे फॉलो द इन जनरल IS कोड फॉर्म ऑफ यूज, दे फॉलो जनरली QCS, दैट इज द कतर कोड सिस्टम। कतर कोड सिस्टम फॉलो होता है। तो हो सकता है कि उस टाइम पर दिल्ली मेट्रो ने बेसिकली आपके रेफरेंसेस पता नहीं किस कोड के लिए होंगे, बट जो आपका इंडियन कोड्स की जो कमेटी है, दैट कमेटी हैज डिसाइडेड इफ DMRC has already used M80 grade in the construction of the basically railway lines, in the construction of metro lines, so it must be amended in the IS code number 456. And my dear students, जून 2015 में IS 456 का अमेंडमेंट आता है, एंड उस अमेंडमेंट में अगर किसी के पास अमेंडमेंट ना हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए, अपना ग्रुप है ना जो, उस ग्रुप में मैं उसका अमेंडमेंट शेयर कर दूंगा। तो ओनली 2 पेज का अमेंडमेंट। तो उस अमेंडमेंट में आपका M65 अमेंडेड कर दिया गया कि द मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट शैल बी यूज्ड इन इंडिया इज लिमिटेड टू M65 grade. However, the more grades of the concretes has also amended in SP16. That is basically the improved version of IS code number 456, SP16. That is the special provisions to the reinforced cement concrete basically structures. Okay, and also for the reinforcement for the steel structures, SP34 is also being used. Special provisions to the steel structures are given basically in the SP34, and special provisions to the reinforced cement concrete structures are given in the SP16. Okay, so my dear students, this was the basic history of the design mixes, है ना। आपको किसी भी ग्रेड का अगर डिजाइन मिक्स करना है तो अपन उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस करेंगे। अदरवाइज मैं यहां पर आपके साथ M40 ग्रेड डिस्कस कर रहा हूं, है। हालांकि M40 ग्रेड में और M80 ग्रेड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लाइकवाइज अगर वहां पर वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड कंक्रीट होगा या फिर वो सेल्फ कंपैक्टेड कंक्रीट होगा, तो सेल्फ कंपैक्टेड कंक्रीट में या फिर टेम्परेचर कंट्रोल्ड कंक्रीट में द प्रोपोर्शन, द इंग्रेडिएंट which increases the workability of the concrete, which gives me the self compaction of a particular concrete, that must be added. And my dear students, that basically हम लोगों ने कंक्रीट में lot of pozzolanic materials हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। Likewise the rice husk ash, likewise the fly ash, likewise the surkhi, likewise the basically calcined clay, lot of materials we had already discussed about the pozzolanic materials. And in the pozzolanic materials, one material was there that was called as the silica fumes. Yes or no? So silica fumes basically increases the workability of a concrete, basically makes the concrete the more self-compacting, basically, and no compaction is basically required, and also is being used in the TCC, that is the temperature controlled concrete. So अगर मैं M40 ग्रेड का आपको अगर डिजाइन करवा रहा हूं तो M80 ग्रेड में और यहां पर M60 ग्रेड में और यहां पर M70 ग्रेड में और यहां पर देयर इज बेसिकली नॉट वेरी मच डिफरेंसेस। अगर मैं यहां पर अगर आपको सीमेंट को डिजाइन करके दिखाऊंगा 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो वहां पर 430 आ जाएगा।
यहां पर सिलिका फ्यूम्स नहीं आएंगे, वहां पर सिलिका फ्यूम्स आ जाएंगी। वो बेसिकली बॉल्स की फॉर्म में होती हैं, है ना। वहां पर जैसे कि हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल्ड कंक्रीट में कंक्रीटिंग करते वक्त अपन आइस मिलाते हैं, आइस क्यूब्स आर बीइंग यूज्ड which basically you can say keeps the concrete cool. Likewise आपने PQC तो देखा ही है, पेवेंट क्वालिटी कंक्रीट कंट्रोल कंक्रीट, तो देखा ही है कि हम लोग उसको बेसिकली रात के दौरान उसको कास्ट करते हैं अल्टरनेट पैनल्स में। तो टेम्परेचर को मेंटेन करना ही अवर मेन मोटो इन द टेम्परेचर कंट्रोल कंक्रीट। ओके, सो ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, फिर भी हम लोग उसको डिस्कस बाद में कर लेंगे, है ना, एग्जाम के लिए दैट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अगर मैं एनेक्सर ए की बात करता हूं, दैट इज द बेसिकली वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ, यू कैन से द कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शंस, दैट इज वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन। So the very very good example of, you can say, M40 grade, M40 ग्रेड फ्लाई एस बेस्ड सीमेंट हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। फ्लाई एस बेस्ड सीमेंट हम लोग वी आर बेसिकली नॉट यूजिंग इन दिस पार्टिकुलर annexure. Okay, so my dear students, this is the example illustrating the mix proportion for a concrete of M40 grade, जिसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आर गिवन लाइकवाइज A1 to A11 और A0 to A11. ओके, हाँ जी, पहली कैलकुलेशंस, द फर्स्ट कैलकुलेशंस आर द स्टिपुलेशंस फॉर द प्रोपोर्शनिंग। द फर्स्ट कैलकुलेशंस आर द स्टिपुलेशंस फॉर द प्रोपोर्शनिंग। प्रोपोर्शनिंग करवाने के लिए क्या क्या चीजें मैं जनरली आई विल टेक इन टू द कंसिडरेशन, जनरली आई विल टेक इन टू द कंसिडरेशन लाइकवाइज, भाई मैं मैक्सिमम सीमेंट कितना यूज कर सकता हूं, मिनिमम सीमेंट कितना यूज कर सकता हूं, वाटर सीमेंट रेशियो कितना यूज कर सकता हूं, सच एंड सच थिंग्स। ओके, सो बेटा आपका ग्रेड जो है दैट इज M40, सीमेंट OPC 43 ग्रेड में यूज कर रहा हूं, कंफर्मिंग टू IS कोड नंबर 8112, कंफर्मिंग टू IS कोड नंबर 8112। ओके, नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट्स, काफी अच्छा डेटा आ गया, मैं कितना यूज करूंगा 20 mm। नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट्स मैं कितना यूज करूंगा बेटा 20 mm। अरे ये तो मजा ही आ गया, मैक्सिमम वाटर कंटेंट आया था ना, यस और नो, 10 के साथ 206 लीटर्स, यस और नो, 186 लीटर्स 20 के साथ 165 लीटर्स फॉर द, लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको, फॉर द 40 mm नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट्स, 40 mm नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट्स, मैक्सिमम और सॉरी मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना यूज करेंगे बेटा, बेसिकली यू कैन से हम लोग हाउ मच द सीमेंट कंटेंट विल बी यूज्ड, 320 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कम से कम इतना यूज करेंगे। वाटर सीमेंट रेशियो दैट डिपेंड्स अपॉन द, यू कैन से द स्ट्रेंथ, एंड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाटर सीमेंट रेशियो, 0.45, वर्केबिलिटी 100 mm, वर्केबिलिटी मतलब उसने हमें स्लंप दे दिया, उसने हमें क्या दे दिया, स्लंप इज गिवन टू यू। बेसिकली जो ये स्टिपुलेशंस हैं, ये आप इस तरीके से मत समझो कि ये हमारा गिवन डेटा है, इसको आप इस तरीके से समझो कि ये हमारा
ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट, ये हमारा बेसिकली एक प्रकार से अजम्पशंस है। ये हमारी क्या है, अजम्पशंस है। वर्केबिलिटी में स्लंप पाई गया है, ओके। नाउ एक्सपोजर कंडीशंस, आरसीसी मान करके सीवियर फॉर रिइंफोर्समेंट कंक्रीट, सीवियर कंडीशंस। आईएस 456 में बहुत प्रकार की सीवियर कंडीशंस आपको पढ़ा चुका हूं। माइल्ड, सीवियर, एक्सपोजर और बेसिकली डेंस, नॉमिनल, लॉट ऑफ सीवियर एक्सपोजर कंडीशंस आर देयर इन आईएस कोड नंबर 456। कंक्रीट को प्लेस करवाओगे तो पंपिंग से करवाओगे, ये सारा मान के चल रहे हैं बेटा। डिग्री ऑफ सुपरविजन गुड ही होगा। एग्रीगेट्स राउंडेड तो यूज नहीं करोगे, एंगुलर यूज करोगे। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट में मान के चल रहा हूं कि मेरा 450 ग्रेड तक जा सकता है। जो हम ये डेटा मान के चलते हैं, ये मान के चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। जो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके ऊपर आधारित होता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोगों ने ये डेटा माना है कि भाई जब मैं M80 ग्रेड यूज करूंगा तो वहां पर अगर मेरा 430 440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब सीमेंट आ रही है तो जनरली आपका M40 ग्रेड में आपकी सीमेंट जो है वो आपकी 430 किलोग्राम 450 किलोग्राम तक आपकी आ जाएगी। जनरली मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं, M80 ग्रेड में 460 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, M25 VDF में 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, M30 PQC में लगभग 410 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जनरली हमारा सीमेंट कंटेंट होता है जो कि मेरे साइट पे यूज करवाया है। M80 जो मैंने यूज करवाया है वो बेसिकली सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट एंड टेम्परेचर कंट्रोल्ड कंक्रीट, SCC is nothing, that is the सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट। आप लोगों के लिए जल्द ही एक वीडियो लेके आऊंगा सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट की, ओके।
practical video, and one is TCC, that is the temperature controlled concrete. ओके, सही है बेटा, 450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हम लोग यहां पर केमिकल एडमिक्सर्स तो ऑब्वियसली यूज करेंगे। तो केमिकल एडमिक्सर्स जब अपन यूज करते हैं ना बेटा, वहां पर आपकी जो वाटर कंटेंट की जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज बेसिकली रिड्यूस्ड बाय अप्रोक्सीमेटली 20%। दैट इज बेसिकली रिड्यूस्ड बाय द अप्रोक्सीमेटली 20%। ओके, जब हम लोग एडमिक्सर्स यूज करते हैं तो सही है ना। हाँ जी, आगे A2 प्रोविजन। A1 था बेटा स्टिपुलेशंस फॉर प्रोपोर्शनिंग। A2 इनको बॉक्सेस में बंद करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं, नो इशू। इनको ना बॉक्सेस में बंद करके चलेंगे। आइए, थोड़ा सा उसमें चीजें क्लैरिटी आ जाएगी। This was A0. Oh, my mistake. This was A1. Stipulations for proportioning. Now A2. Test data for materials, है ना। मटीरियल्स के लिए टेस्ट डेटा। अरे यार, ये तो अभी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट की 3.15, कोर्स फाइन एग्रीगेट्स की 2.74, वाटर एब्जॉर्प्शन कोर्स एग्रीगेट्स के द्वारा 0.5%, फाइन एग्रीगेट्स के द्वारा 1%। फ्री मॉइस्चर नहीं मान के चलते हैं, हाँ। फ्री मॉइस्चर आपका बेसिकली नील मान लो। ये फ्री मॉइस्चर का मतलब है कि उसके अंदर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर से जितना मॉइस्चर वो मान के चल रहे हैं, ठीक है। फ्री है। कोर्स एग्रीगेट्स में नील, फाइन एग्रीगेट्स में नील। सीव एनालिसिस कोर्स एग्रीगेट्स एंड फाइन एग्रीगेट्स। कोर्स एग्रीगेट का सीव एनालिसिस आपके सामने। तो हालांकि देखिए, इन चीजों की हमें डिजाइन मिक्स में इसलिए रिक्वायरमेंट है कि आपने जब डिजाइन मिक्स करवा रहे हो तो वो कितने में पास हुआ, कितने में फेल हुआ है। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोगों को इन कैलकुलेशंस के लिए दिस डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, कि भी हमारा ISCVA है, एनालिसिस ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस, है ना। 383 नंबर जो कोड होता है उसके आधार पर हम लोगों को जनरली मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज और एग्रीगेट्स के बेसिकली कोर्स एग्रीगेट्स और फाइन एग्रीगेट्स का हम लोग सीव एनालिसिस करवा लेते हैं। अगर मैं सोइल की बात करूंगा तो IS कोड नंबर 2720 जाता है। अगर मैं सोइल की बात करूंगा तो IS कोड नंबर हमारा 2720 आपका चला जाता है। क्लियर? तो ये चीजें, बाकी हमने ये नील मान ही लिया है, ठीक है। मॉइस्चर, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं जी टारगेट मीन स्ट्रेंथ की। अब हमारा मेन डिजाइन प्रोसीजर स्टार्ट होता है ना। फाइन एग्रीगेट्स में वही है। नाउ अब हमारा मेन डिजाइन प्रोसीजर अब स्टार्ट होता है ना। FCK डैश, जो कि मैंने आपको FM से डिनोट करवा दी थी। टारगेट मीन स्ट्रेंथ, दिस इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ 28 डेज में। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK ले लिया और वहां पर हम लोग इसको स्टैंडर्ड डेविएशन लेते थे। क्या लेते थे जी? स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला वाज FM इज इक्वल टू FCK प्लस 1.64 सिग्मा। पूरा प्रोसीजर इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि उस प्रकार के क्वेश्चन हमने नहीं किए थे।
है ना, उस प्रकार के क्वेश्चंस को हमने डिस्कशन में नहीं लिया था, दैट्स वाई आपका प्रोसीजर इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर? हाँ जी। फ्रॉम द टेबल 1 ऑफ द आईएस कोड नंबर 10,202 10,262 10,262 की टेबल 1, पहले वाले लेक्चर में आपको बताया कि M10 और 15 ग्रेड के लिए स्टैंडर्ड एविएशन 3.5 मेगा पास्कल, 20 और 25 ग्रेड के लिए 4 मेगा पास्कल, और मोर देन और इक्वल टू 30 ग्रेड के लिए 5 मेगा पास्कल। यही क्या था? तो 5 मेगा पास्कल आपके सामने मैंने ले दिया। सही है। देयरफॉर हम लोगों को M40 ग्रेड तो डिजाइन करना है, लेकिन मुझे टारगेट मीन स्ट्रेंथ 48.25 मेगा पास्कल डिजाइन करना है जी। मुझे टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितनी डिजाइन करनी है? 48.25 मेगा पास्कल। देखो ना, 40 प्लस 1.65 इंटू 5 सिग्मा 64 करोगे तो वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 48.20 है ना। क्लियर? तो हमारा पहला जो स्टेप आया टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालना, वो यहां तक पूरा होता है जी। अगर कोई आपको, ये तो ठीक है, हम लोग बेसिकली आईएस कोड से अपन ये एग्जांपल को उठा रहे हैं, इसलिए ठीक है, मुझे स्टिपुलेशंस पता है। लेकिन अगर मैं आईएस कोड से एग्जांपल्स नहीं उठाऊंगा तो भी आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन आपको मैक्सिमम वाटर कंटेंट का अमाउंट यू मस्ट नो, you must have the knowledge about the how to fix the maximum water content and how to fix the minimum water content. Okay, now okay, आगे चलते हैं। हाँ जी, तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ वी हैव फिक्स्ड। नाउ आवर फोर्थ इज कॉल्ड एज द सिलेक्शन ऑफ द वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो का सिलेक्शन करना। क्या बताया था कि आप वर्केबिलिटी चार्ट्स से वाटर सीमेंट रेशियो फिक्स करवा लो। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, आईएस कोड नंबर 456 टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 5 में M30 ग्रेड तक स्ट्रेंथ दे रखी है जी, सॉरी वाटर सीमेंट रेशियो दे रखा है 0.48। M33 और 40 के लिए वाटर सीमेंट रेशियो गिवन दे रखा है जी 0.45। तो हमने वहां से WC रेशो आपने फिक्स करवा लिया जी 0.45। हमारे स्टेप्स में, डिजाइन स्टेप्स में, द फर्स्ट स्टेप वाज कैलकुलेशन ऑफ FM एंड वो मैं निकाल चुका हूं 48.25 मेगा पास्कल। Second step was on the basis of the either workability charts or on the basis of table number 5 of IS code number 456, that is the strength desired, amount of the strength desired, on the basis of the amount of the strength desired, what should be the water cement ratio that we must have to choose from the table number 5 of IS code number 456. Okay, now third step was basically we have to fix the water content है, water content we have to fix। ये था कि नहीं था? हाँ जी। तो A4 क्या बोलता है? A4 आपका बोलता है कि आपका, ये तो यार स्टेप्स का नंबर है भैया, और कुछ नहीं है। बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एडॉप्ट वाटर सीमेंट रेशियो 0.40, 0.40 इज लेस देन 0.45। जितना वाटर सीमेंट रेशियो आपका कम रहेगा, strength will be more, the required, or sorry, the desired strength will be more. Okay, so आप लोग इसको फिक्स करने की बजाय 0.40 भी ले सकते हैं। ये ट्रायल चल रहा है बेटा। ट्रायल 1 आप 0.4 के साथ कर सकते हो, ट्रायल 2 आप हो सकता है कि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा आ गई हो तो आप 0.42 पे भी जाना पड़ सकता है, या फिर बहुत कम आ गई हो तो 0.38 पे भी जाना पड़ सकता है। समझ रहे ना? तो ट्रायल्स चल रही हैं। दिस इज ट्रायल 1।
पास हो जाता बहुत अच्छी बात है, नहीं पास होता है तो देखेंगे, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप, पांचवा स्टेप, सिलेक्शन ऑफ द वाटर कंटेंट। हमने वाटर सीमेंट रेशियो सिलेक्ट करवा लिया था, यही था ना। फिर हमने वाटर कंटेंट बेसिकली उसको सिलेक्ट करना है। वाटर कंटेंट आपका जनरली 20 mm, देखो ना, ये हमारा कहां था, कहां गया, ये रहा नॉमिनल, व्हाट इज द नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट्स, देखो ना ये बैठा हुआ बेटा, अरे भैया तुम कहां से आ गया, हाँ जी देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट्स 20 mm, तो 10, 20 एंड 40, याद आ रहा कुछ है, हाँ जी, 10 के साथ 206 लीटर्स, 186 लीटर्स, 165 लीटर्स, तो बेटा 20 के साथ, फॉर द 20 you have to basically select the water content, you have to select the water content as basically 186 लीटर्स, तो हमने सिलेक्ट कर लिया भैया, है ना। आइए, नाउ वी हैव सिलेक्टेड फॉर फ्रॉम टेबल 2 ऑफ आईएस कोड नंबर 10,262, लिखना जरूरी है क्योंकि दो कोड आपस में बेसिकली इंटरमिक्स होकर चल रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम वाटर कंटेंट फॉर 20 mm एग्रीगेट्स इज 186 लीटर्स, क्लियर है ना। अब हमने स्टिपुलेशंस क्या की थी कि लगभग M40 ग्रेड का ना जो स्लंप होगा वो स्लंप हमारा 100 mm होगा, स्लंप हमारा, वर्केबिलिटी हमारी 100 mm होगी। जो मैंने आपको टेबल बताई थी वो बेसिकली 50 mm के स्लंप के लिए होती है। तो अगर स्लंप मुझे बढ़ाना है, स्लंप मुझे बढ़ाना है तो माल मेरे को पतला बनाना पड़ेगा, पतला बनाने के लिए मुझे वाटर बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने वाटर इंक्रीज कर दिया एंड 100 mm के स्लंप के लिए आई हैव रिक्वायरमेंट ऑफ 197 लीटर वाटर। तो जी थर्ड कैलकुलेशन इज, मैंने आपका 100 mm स्लंप के लिए 20 mm एग्रीगेट्स, 100 mm स्लंप के लिए आई हैव फिक्स्ड द वाटर कंटेंट एज 197 लीटर, ओके हाँ जी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि केमिकल एडमिक्सर्स आर आल्सो यूज्ड, तो वाटर सीमेंट वाटर कंटेंट गेट्स रिड्यूस्ड बाय द बेसिकली 20%। एज सुपर प्लास्टिसाइजर्स आर यूज्ड, वाटर कंटेंट कैन बी रिड्यूस्ड अप टू 20% एंड अबो। तो भैया इसका 20% रिड्यूस कर दो, है ना। वाटर कंटेंट रिडक्शन अप टू 20% हैज बीन अचीव्ड, है ना, और 29% बोल लीजिए, कोई बात नहीं। एंड हेंस द अराइव्ड वाटर कंटेंट इज इक्वल टू द 140 लीटर। तो ये 197 लीटर आपका कितना हो गया जी, 140 लीटर, 29% डिडक्शन बिकॉज ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर्स, because of the super plasticizers 29% of the water content gets reduced। तो 3 डेटा हमारे पास फाइनल हो गई, 3 डेटा हमारे पास हो गई फाइनल, क्लियर। नाउ उसके आगे चलते हैं। अब हमारा नंबर आ गया जी कोर्स टू द फाइन एग्रीगेट्स का रेशो फिक्स करने का। कैलकुलेशन ऑफ द सीमेंट कंटेंट निकाल लो पहले, उसके बाद बेसिकली सीमेंट कंटेंट तो निकल के आ ही जाएगा। फोर्थ स्टेप हमारे अनुसार सीमेंट कंटेंट, यहां पर हमने
सीमेंट की रेंज मान के चल रहे थे 320 से 450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मान के चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? बिल्कुल चल रहे थे। तो बेटा सीमेंट कंटेंट निकालने के लिए चलो आगे चलते हैं, मैं अपनी कैलकुलेशंस इधर कर रहा हूं। हाँ जी, तो सीमेंट कंटेंट, वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय द वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर कंटेंट वाज 140 लीटर, वाटर सीमेंट रेशियो वाज 0.40। तो सीमेंट कंटेंट इज इक्वल टू, हमारा फाइनल हो गया 350 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अज्यूम्ड वैल्यू के बीच में है, सीवियर एक्सपोजर कंडीशंस के लिए 320 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कम से कम होना चाहिए, 450 मैक्सिमम होना चाहिए। तो क्या ये 350, 320 और 450 के बीच में नहीं है क्या? बिल्कुल है। ओके कर दो, ओके कर दो। है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल है जी, कर दीजिए ना। ओके, लॉक कर दो। वो कपिल शर्मा कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन कहते हैं लॉक द ऑप्शन, कर दो ना लॉक। हो गया लॉक, है ना? तो हमारा सीमेंट कंटेंट हो गया जी फिक्स। सीमेंट कंटेंट आपने फिक्स कर लिया। अब बारी आ गई डिफरेंट मटेरियल्स की कैलकुलेशन करने का। अब बारी आ गई डिफरेंट मटेरियल्स की कैलकुलेशन करने का कि मेरा फाइन एग्रीगेट्स या कोर्स एग्रीगेट्स मेरे किस किस रेंज में रहेंगे, उनकी वॉल्यूम का प्रोपोर्शन क्या क्या रहेगा, है ना? तो बेटा इनिशियली वी हैव टू एज्यूम a proportion of the fine aggregates to the coarse aggregates as 1:2, and if if the desired strength will not be basically achieved by assuming that particular ratio, we can change later on. That basically this is the trial, हम ट्रायल कर रहे हैं ना। हाँ जी, आगे आते। Seventh, according to this one is, seventh one is the proportioning of the coarse and fine aggregates content, है ना? तो यहां पर हमने फोर्थ स्टेप था, हमारा पांचवां स्टेप, हमारा पांचवां स्टेप, द यू कैन से द फाइन एग्रीगेट टू द कोर्स एग्रीगेट रेशियो मैंने 1:2 फिक्स कर लिया। फाइन एग्रीगेट टू द कोर्स एग्रीगेट रेशियो 1:2 आई हैव फिक्स्ड, हमने उसको फिक्स कर लिया। ठीक है, चलिए और भी मान सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। फ्रॉम द टेबल नंबर 3 वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स। हाँ जी, अब ये टेबल नंबर 3 ना मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताई थी कि आपकी कोर्स एग्रीगेट्स का अमाउंट अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट्स, अकॉर्डिंग टू बेसिकली जोन होता है, अकॉर्डिंग टू द जोन्स वो आपका होता है ना? अकॉर्डिंग टू द जोन आपका जनरली होता है। ओके, नाउ कोर्स एग्रीगेट्स का टोटल वॉल्यूम 10, 20 और 40, 10, 20 और 40, दिस इज द नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट्स। दिस इज आवर टेबल नंबर 3 ऑफ 10,262। ये क्या कहता है, देखो ध्यान से, कि अगर आपका नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट्स अगर आपको गिवन है ना, तो मैं 2-3 जोन्स की बता देता हूं। जोन नंबर 1 बोल लीजिए, ये बेसिकली सैंड के जोन होते हैं। जोन नंबर 2, 2 जोन बता देता हूं, ठीक है ना? अगर मैं जोन 1 की बात करूंगा तो बेसिकली 0.44, 46 अप टू सॉन, है ना? तो जोन 1 में 0.40 और 44 सॉरी 44, 0.60, 0.69, this is the basically you can say the percentage of coarse aggregates with respect to the total aggregates, with respect to the total aggregates, total aggregates के रिस्पेक्ट में कोर्स एग्रीगेट्स आपके कितने होंगे, कोर्स एग्रीगेट्स आपके कितने होंगे, और जैसे जैसे जोन बढ़ता जाएगा दिस वैल्यू बेसिकली इंक्रीज बाय 0.002 परसेंटेज,
0.002%। ओके, तो यहां पर हमारा 0.46 हो जाएगा, 0.62 हो जाएगा, 0.71 हो जाएगा। अगर मैं आगे बात कर लेता हूं तो हमारा यहां पर जोन 3 आ जाएगा, जोन 4 आ जाएगा। अगर मैं जोन 3 की बात करूं 0.48 आ जाएगा, 0.50, 0.64, 0.66, 0.73, 0.75, इस प्रकार से आपका ये डेटा आ जाएगा। क्लियर? तो बेटा बेसिकली ये टेबल मेरे को मैंने जानबूझ के नहीं बनाई थी, बिकॉज वॉल्यूम प्रिपरेशन, बिकॉज प्रैक्टिकली आप लोगों को चीजें सोल्व आउट करवानी पड़ती हैं, जो that basically done with respect to the, you can say, the batching by weight, not the batching by the volume. Okay, not the batching by volume. ठीक है, कोई बात नहीं, चलो एनीवेज, ठीक, इस बाने ये टेबल भी बन गई। ओके, सो प्रोपोर्शन ऑफ द वॉल्यूम, ये टेबल नंबर 3 है। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू 20। अरे मेरे प्यारे लाल, अरे मेरे गण मित्र, ये रहा 20, ये है ना 20। ओके, this is 20 mm. With respect to the 20 mm nominal size of the aggregates, how much percentage of the coarse aggregate with respect to the total aggregates will be fixed? Hello. How much volume of the total aggregate, or percentage of the total, sorry, coarse aggregates with respect to the total aggregates can be fixed? कर लो भैया। 20 mm साइज ऑफ एग्रीगेट्स के लिए आपकी परसेंटेज एंड फाइन एग्रीगेट्स फॉर द वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 to 0.60। हाँ जी, तो यहां पर मेरा वाटर कंटेंट, क्योंकि बेटा यहां पर ना ये चीज वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 to 0.60 के बीच में रहे, है ना, तो बेसिकली यहां पर बेसिकली कोर्स है, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो कम है, तो वी हैव टू बेसिकली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द percentage of the coarse and the fine aggregates with respect to the total aggregates, with respect to the total aggregates, तो इंक्रीज कर दो, है ना। therefore volume of the coarse aggregates is required to be increased to decrease the fine aggregate content, and the water cement ratio is lower by the 0.1, how, by 0.50, कम कीजिए 0.40, तभी तो पहुंचा हमारा 0.40 आया हुआ ना बेटा, है ना। तो प्रोपोर्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोर्स एग्रीगेट्स इंक्रीज बाय 0.02 at rate of 0.01 for every 0.05 changes in water cement ratio। तो करेक्टेड प्रोपोर्शन 0.40 के आधार पर हमारा 0.60 की बजाय 0.62 ले लेंगे हम, 0.62 ले लेंगे। तो वापस आते हैं, आइए। तो भैया ये मैंने एज्यूम किया था, एज्यूम करने के लिए बोला था। अगर मैं अब बात करूं, कोर्स एग्रीगेट्स विल बी इक्वल टू 0.62 बेसिकली परसेंटेज ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट्स, है ना, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट्स, ऑल एग्रीगेट्स, ठीक है, ऑल एग्रीगेट्स।
हाँ जी, तो वाटर सीमेंट रेशियो, सॉरी कहां पर आ गए हम, 0.6 ऑफ द ऑल एग्रीगेट्स। नाउ आइए, हाँ जी क्या बात हुई, बात कहां तक पहुंच गई थी, बात यहां तक पहुंच गई थी। इन केस ऑफ द कोर्स एग्रीगेट इज नॉट एंगुलर वन, ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट में बी रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज्ड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। ठीक, वो तो बेसिकली आपका बेसिकली एंगुलर एग्रीगेट्स नहीं है तो की केस की बात। अब हमारा पंपिंग था, पंपिंग मेथड था ना, पंपिंग मेथड के लिए ना ये वैल्यू बेसिकली, क्योंकि अगर पंपिंग में मोटा एग्रीगेट बढ़ जाएगा ना बेटा, वहां पर हमें सीमेंट का कमेंट कंटेंट या वाटर कंटेंट मोस्टली ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। पंपेबल कंक्रीट के लिए इनकी वैल्यूज 10% से रिड्यूस हो जाती है ना। पंपेबल कंक्रीट के लिए इनकी वैल्यूज 10% रिड्यूस हो जाती है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द कोर्स एग्रीगेट्स 10% रिड्यूस कर दो, 0.56 आ जाएगा। तो ये यहां पर दिस इज 0.56, 10% रिडक्शन फॉर द पंपेबल कंक्रीट, है ना। यहां पर आपका 10% रिडक्शन फॉर पंपेबल कंक्रीट, पंपेबल कंक्रीट के लिए 10% रिडक्शन दे दिया। और यहां पर मैंने वाटर कंटेंट बेसिकली 20% रिडक्शन फॉर एडमिक्सचर्स, एडमिक्सचर्स के लिए 20% रिडक्शन है और 10% यहां पर रिडक्शन है फॉर द पंपेबल कंक्रीट। क्लियर, स्टेप हो गया पांचवा। हाँ जी, 0.56 हमारा आ गया। वॉल्यूम ऑफ द फाइन एग्रीगेट्स, भैया टोटल वॉल्यूम मेरी 1 है, 0.56 मेरा वो आ गया, तो फाइन एग्रीगेट्स की वॉल्यूम आ गई 0.44। फाइन एग्रीगेट्स की वॉल्यूम हमारी आ गई 0.44। ओके, तो इन जनरल अगर मैं वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में बात करूंगा तो फाइन एग्रीगेट्स, हमारा वही स्टेप चल रहा था ना, सॉरी, हाँ जी, अगर मैं यहां पर इस पर्टिकुलर स्टेप में, पांचवें स्टेप में फाइंड टू कोर्स एग्रीगेट्स, तो कोर्स एग्रीगेट्स की वॉल्यूम 0.56 मीटर क्यूब एंड फाइन एग्रीगेट्स की वॉल्यूम 1 माइनस 0.56, दैट इज टोटल एग्रीगेट्स टोटल एग्रीगेट्स के प्रोपोर्शन में, टोटल एग्रीगेट्स के प्रोपोर्शन में हमने उतना परसेंटेज, टोटल एग्रीगेट्स के प्रोपोर्शन में उतनी परसेंटेज हमने बेसिकली निकाल ली, 0.44% एंड यू कैन से द 56%। ओके, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट्स, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट्स, क्लियर, हाँ जी। अब हमारा आता है जी लास्ट मिक्स कैलकुलेशंस। बस हो गया, हम हो गया डिजाइन मिक्स, इसमें हम लोगों को एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, लास्ट स्टेप इज द मिक्स कैलकुलेशंस, यही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, मिक्स कैलकुलेशंस। ओके, द कंक्रीट मिक्स कैलकुलेशंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट शैल बी एज फॉलोज। आपका बेटा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना है जी, 1 मीटर क्यूब ना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वॉल्यूम आई हैव टू डिवाइड द मास बाय डेंसिटी, एंड इफ डेंसिटी आई हैव टू कैलकुलेट then mass per unit is the specific gravity into the row of water. Clear? So mass divided by the specific gravity into row of the water. After calculations, I found the value 0.111 meter cube. 0.111 meter cube. Calculations को solve कर लेते हैं, थोड़ा सा ये धुंधला दिख रहा होगा आपको, नो इशू।
ओके, नो इश्यू। देखिए, देखिएगा, मजा लीजिएगा ना। आइए, हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ सीमेंट divided by the specific gravity of the cement into rho of water, into rho of water। अरे मेरे प्यारे लाल, सीमेंट आई थी 350, नहीं आई थी? बोलो। अरे भाई, ये इतनी देर में भूल गए? ये रहा, कितना आया था? ये बैठा हुआ है 350। 1 मीटर क्यूब के लिए बात कर रहे हैं ना। डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाज इनटू 1/1000 है। वॉल्यूम आ गया 0.111 मीटर क्यूब है। नंबर ऑफ बैग्स तो बाद में निकालेंगे डेंसिटी के हिसाब से, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब से बाद में निकालेंगे नंबर ऑफ बैग्स। ओके, हाँ जी, डेंसिटी ऑफ द सीमेंट 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट 3.15 ले लो। ओके, चलिए, हो गया ना। आगे चलिए, पहली कैलकुलेशन होगी, दो कैलकुलेशन होगी, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट एंड वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर, नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर G1 होता है 1/1000, वैल्यू इज इक्वल टू 0.140 मीटर क्यूब। ओके, 0.140 मीटर क्यूब। और अगर आप इसको फार्मूला बेस की बात करेंगे तो बेटा, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 140 GW1 रो W 1000। हो गया काम खत्म। वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर 2% बताया था, एडमिक्सचर का पूरा चैप्टर पढ़ाया था। एडमिक्सचर्स will be equal to 0.522% of the cementitious compound। सीमेंटिशियस मटेरियल के लगभग आधे % से 2% तक होता है। ठीक है, 2% ले लो। वॉल्यूम ऑफ केमिकल एडमिक्सचर सुपर प्लास्टिसाइजर्स 2% बाय द मास ऑफ द सीमेंटिशियस मटेरियल, 2% बाय द मास ऑफ द सीमेंटिशियस मटेरियल। अरे मेरे प्यारे दोस्त, जी ऑफ यू कैन से द एडमिक्सचर्स होता है 1.14 से लेकर के 1.15 तक, 1.14 से 1.15। क्लियर? एडमिक्सचर्स का अमाउंट, चलो इसको निकालते हैं। ओके, नो इश्यू, कैलकुलेट करते हैं। मजा तो तभी आएगा ना बेटा, काम करने में तो मजा आपको तभी आएगा जी, जब इनकी सबकी कैलकुलेशंस आप कर लोगे, अपने हाथ से कर लोगे। आइए डिस्कस करते हैं जी। देखो दोस्त, वॉल्यूम निकालनी है। मास ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इनटू डेंसिटी ऑफ द वाटर, यही है ना। तो भैया, अरे मेरे प्यारे दोस्त, 2% है ना, तो 0.002 ऑफ 350 किलोग्राम, सीमेंट 350 किलोग्राम थी ना जी, डिवाइडेड बाई एडमिक्सचर की स्पेसिफिक ग्रेविटी बैठी हुई है 1.14 इंटू 1000 कर दो, सॉल्यूशन निकाल लो, मीटर क्यूब में आंसर बता दो। आंसर आपका आया है जी 0.006 मीटर क्यूब है, 0.006 मीटर क्यूब है। हो गया आंसर, समझ रहे ना? हो गया आंसर है, हाँ जी। अब हम बात कर लेते हैं आगे, वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट्स। 1 मीटर क्यूब टोटल था, सही था ना। कंक्रीट में
1 मीटर क्यूब में सीमेंट भी लगी होगी 0.111, वाटर भी लगा होगा 140 और 0.006। तो एक में से ये आपका आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट्स। अब ये देखिए, यहां पर ये बैठा हुआ है टोटल एग्रीगेट्स की परसेंटेज, 56% वो, 44% वो, ठीक है ना। तो देखो, तो भैया इस वॉल्यूम का 56% एक बैठा हुआ है और 44% एक बैठा हुआ है। इस वॉल्यूम का मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स निकालना है, तो बेसिकली वाइड रेशियो ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, और सॉरी वॉल्यूम इनटू जो भी परसेंटेज आ गया, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों का बराबर है, और इनटू रो ऑफ वाटर, इनटू रो ऑफ वाटर। तो मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट्स, इसको मैं VA बोल लो, वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट्स मल्टीप्लाइड बाई द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द कोर्स एग्रीगेट्स मल्टीप्लाइड बाई द रो ऑफ वाटर एंड मल्टीप्लाइड बाई द परसेंटेज ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स, परसेंटेज ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स। सिमिलरली अगर मुझे मास ऑफ फाइन एग्रीगेट्स मुझे निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट्स मल्टीप्लाइड बाई द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फाइन एग्रीगेट्स मल्टीप्लाइड बाई द रो ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई द परसेंटेज ऑफ द फाइन एग्रीगेट्स। सही है ना। तो निकाल दिया भैया, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट्स 0.743, GCA 2.74, रो 1000 एंड परसेंटेज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट्स 0.56%, आ गया 1140 किलोग्राम। सिमिलरली फाइन एग्रीगेट्स अगर निकालना है तो वही चीज है, केवल 0.44 आ जाएगा। वैल्यू आ गई 896 किलोग्राम, वैल्यू आ गई 896 किलोग्राम। ओके, वैल्यू कितनी आई जी? 896 किलोग्राम। सही है। मिक्स प्रोपोर्शन फॉर द ट्रायल नंबर 1, हमारा ट्रायल मिक्स 1 था ना बेटा, तो ट्रायल मिक्स 1 था भैया, तो सीमेंट का रिजल्ट 350 है, बिल्कुल सही है। वाटर 140, फाइन 896, 1140, केमिकल एड मिक्सचर दिस वन, वाटर सीमेंट रेशियो आपका 0.4, वाटर सीमेंट रेशियो आपका 0.4। बाकी डेटा की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, डिजाइन मिक्स करवा दिया है, मजा ही आ गया आपको। ओके, डिजाइन मिक्स आपको करवा दिया। दिस वाज बेसिकली द डिजाइन मिक्स ऑफ M40 ग्रेड, M40 ग्रेड का डिजाइन मिक्स आपके पास आ गया। ओके, लो जी, ये थे जी आपके रिजल्ट्स, आंसर्स। These were the various results of the M40 grade. कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 40 मेगापास्कल, टारगेट मीन स्ट्रेंथ 48.25 मेगापास्कल, नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट्स 20 mm, सीमेंट यूज्ड OPC 43 ग्रेड, वाटर आपके पास आ गया, वाटर का अमाउंट भी आ गया। कोई डाउट है पूछ लीजिए, नहीं तो आगे चलेंगे। सो बेटा, दिस कंप्लीट्स योर M40 ग्रेड डिजाइन मिक्स ऑफ द OPC सीमेंट, OPC सीमेंट। ओके, IS कोड नंबर 8112 फॉलो करेगा। IS कोड नंबर कौन फॉलो करेगा बेटा? 8112। 8112 है, 8112 कोड
विल बी फॉलोड है। ओके, नाउ अगर आपको ट्रायल नंबर 2 करना है, ±10% ऑफ द वेरिएशन ऑफ द वाटर सीमेंट रेशियो, है ना, इस प्रकार से आप ट्रायल को फॉलो कर सकते हैं। मोर ट्रायल से सबसीक्वेंट ट्रायल्स, सबसीक्वेंट ट्रायल मिक्सेस shall be done with ±10% of variation in वाटर सीमेंट रेशो। ओके बेटा, खत्म हुआ ना काम, मजा आया ना? दोबारा रिपीट करते हैं, आइए चलिए दोबारा चलते हैं। हाँ जी, डिजाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट हमने स्टार्ट किया M40 ग्रेड का, IS कोड नंबर 10,262, लेटेस्ट और लेटेस्ट रिवाइज्ड इन द ईयर ऑफ 2019। ओके, initially we have some stipulations, some assumptions on the basis of our practical experiences कि कौन सा सीमेंट का यूज होगा, सारी सच एंड सच थिंग्स, है ना, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्केबिलिटी चार्ट्स also generally the water content was being fixed. After that, this was the test data, means specific gravity of the cement generally इतनी होती है, density of the cement आपका 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट्स 1700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस तरीके का डेटा हमने फॉलो किया, है ना। उसके बाद हमने जनरली बेसिकली टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकाली, पहला स्टेप स्टैंडर्ड एविएशन के आधार पर। फिर हमने वाटर सीमेंट रेशियो निकाला 0.40। याद रखना है, वाटर कंटेंट आपका 20% रिडक्शन हो जाता है फॉर बेसिकली एडमिक्सचर्स यूज के कारण 20% रिडक्शन हो जाता है। उसके बाद हमने सीमेंट कंटेंट निकाला, सीमेंट कंटेंट निकाला हमने 350 किलोग्राम, जो कि 320 से 450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच में था। उसके बाद हमने फाइन टू कोर्स एग्रीगेट का रेशियो जनरली एज्यूम करते हैं 1:2, बट हमने यहां पर बेसिकली वॉल्यूम प्रिंसिपल के आधार पर हमने कैलकुलेशंस किया, एंड बेसिकली कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल नंबर 3 वी हैव फिक्स्ड, है ना। जितने स्लम्प के लिए होता, जितना हमारा स्लम्प है, परसेंटेज आपके पास आ गई। यहां पर हमारी बेसिकली परसेंटेज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट्स विद रिस्पेक्ट टू द टोटल एग्रीगेट्स हमने फिक्स करवाया, 0.56 और 0.44 आया, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद हमने मिक्स की कैलकुलेशंस की। सीमेंट मेरी 0.111 मीटर क्यूब आई, वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरा 0.140 मीटर क्यूब आया, और वॉल्यूम ऑफ केमिकल एडमिक्सचर 0.006 क्यूबिक मीटर आया। ऑल एग्रीगेट 0.743 मीटर क्यूब आए। तो कोर्स एग्रीगेट्स 1140 किलोग्राम एंड फाइन एग्रीगेट्स 896 किलोग्राम। उसके बाद हमने सीमेंट के इन सारी चीजों को बेसिकली फिक्स करवा दिया। क्लियर? यहां पर हमने ये वाटर भी फिक्स करवा लिया था। कहां गया ये रहा वाटर, एक 0.140 मीटर क्यूब, तो 0.140 गुना 1000 करोगे तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब निकालोगे, इनटू मीटर क्यूब से मीटर क्यूब को चीर दोगे तो कितना आ जाएगा, 140 किलोग्राम आ जाएगा ना बेटा, है ना। हाँ जी, सिमिलरली प्लास्टिसाइजर्स सारी चीजें आपका 7%, मतलब 7 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। ओके, सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे गणमित्र, मेरे प्यारे माय डियर लर्नर्स, दिस वाज अबाउट द M40 ग्रेड डिजाइन फॉर द 10,262 नंबर कोड, लेटेस्ट रिवाइज्ड इन द ईयर ऑफ द 2019। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल और देखेंगे, फिर मजा आएगा। एक एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे। हाँ जी,
आइए डिस्कस करते हैं। एनेक्चर नंबर बी, क्लॉज नंबर 6 ऑफ IS कोड नंबर 10,262 2019। दिस इज आर एनेक्चर नंबर बी of IS code number 10,262. Okay, now this is the illustrative example of mixed design of concrete using fly ash as a part replacement of the OPC. पहले वाले केस में we didn't consider the fly ash, but in this particular case fly ash will also be considered. Okay, fly ash will also be considered. ठीक है, okay, so an example illustrating the mix proportion for a concrete of M40 grade using fly ash है ना। फ्लाई एश को यूज करने के लिए, फ्लाई एश को यूज करके हम लोग बेसिकली डिजाइन मिक्स करने जा रहे हैं। ठीक है, मींस बेसिकली हम लोग पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट यूज करने जा रहे हैं। हम लोग पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट यूज करने जा रहे हैं, लेकिन इस ओपीसी के अंदर हम लोग कुछ पोजोलोनिक मटेरियल मिलाएंगे। हम लोग कुछ पोजोलोनिक मटेरियल मिलाएंगे, उस पोजोलोनिक मटेरियल से मेरी कॉस्ट इफेक्टिव बन जाएगा। क्लियर? B1 वही है, सेम प्रोसीजर विल बी देयर। स्टिपुलेशंस, हाँ जी, स्टिपुलेशंस फॉर द प्रोपोर्शनिंग, जैसे हमने वहां पर माना था यहां पर भी वही मानेंगे। ग्रेड कौन सा बेटा? M40, OPC 43 ग्रेड, वही IS कोड नंबर 8112 को कंफर्म करेगी, है ना। कंफर्मिंग टू IS कोड नंबर 8112। टाइप ऑफ मिनरल एडमिक्सचर फ्लाई एश, यहां पर यह बात अलग आ गई ना, केमिकल एडमिक्सचर नहीं है, ये मिनरल एडमिक्सचर है। कौन सा यूज किया? फ्लाई एश। IS कोड नंबर 3812 है ना, 3812 का बेसिकली पार्ट नंबर 1 यूज होगा। ओके, हाँ जी। नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट वही चीज, सारी चीजें बराबर हैं। मिनिमम, क्योंकि M40 ग्रेड है ना बेटा, मिनिमम, मैक्सिमम, वर्केबिलिटी 100 mm, एक्सपोजर कंडीशन सीवियर, मेथड ऑफ पंपिंग, डिग्री ऑफ सुपरवाइजन गुड, टाइप ऑफ एग्रीगेट क्रस्ट एंगुलर, और मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट 450 किलोग्राम। एवरीथिंग इज सेम, एक पॉइंट को छोड़ के। कौन सा पॉइंट है भैया? ये है ना, एक्सेप्ट दिस पॉइंट ऑल द स्टिपुलेशंस आर सेम। सारी स्टिपुलेशंस आपकी सेम है ना, नहीं है क्या? बताओ। ऑल द स्टिपुलेशंस आर सेम एक्सेप्ट पॉइंट नंबर C, केमिकल एडमिक्सचर वही सुपरप्लास्टिसाइजर्स। ओके, नाउ टेस्ट डेटा, एवरीथिंग सेम। OPC 43 ग्रेड, स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15, फ्लाई एश, यहां पर आपका IS कोड नंबर 3812 पार्ट 1, फ्लाई एश की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये नई चीज आ गई 2.2। स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख लो बेटा, यहां पर आपको ना याद नहीं रहेंगी फिर, नहीं तो G ऑफ सीमेंट, हाँ जी 3.15, G ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स एंड फाइन एग्रीगेट्स
2.74 है ना। और क्या था, ओके, जी ऑफ एडमिक्सचर सुपर प्लास्टिसाइजर, भैया एक बार याद रखना, कभी आप ना कभी बाद में ना ये कहो यार सर ये तो आपने गलत करवा दिया, तो इसीलिए ना इसको ना ये रहा जो जी ऑफ दिस इज वाज द बेसिकली एंड द केमिकल एडमिक्सचर, दैट इज द सुपर प्लास्टिसाइजर। दैट इज द सुपर प्लास्टिसाइजर, ओके। हाँ जी, तो जी ऑफ द सुपर प्लास्टिसाइजर इज 1.14 to 1.15, okay। now G of mineral admixture, this was the chemical admixture, this is the mineral admixture, fly yes 2.2, केमिकल एडमिक्सचर वही सारा, इसका जी ले लो, जी इक्वल टू 1.14 to 1.15, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स वही 2.74, वाटर एब्जॉर्प्शन नील के बराबर है, और मतलब कोर्स एग्रीगेट में 0.51%, फ्री मॉइस्चर नील के बराबर है, एंड सीव एनालिसिस वही है जो पहले करवाया था, सीव एनालिसिस वही है जो आपको पहले करवाया था एज इट इज। बाकी सीव एनालिसिस की बेटा यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी, प्लीज बी केयरफुल, ओके। हाँ ठीक है, वो चीजें तो आपको फॉलो तो करनी है कि भैया मेरा सीव एनालिसिस होने के बाद ही मेरा वो ग्रेडेशन टेस्ट में मेरा पास है कि नहीं है पास, है ना, वेदर इट विल बी पास और नॉट पास, ओके। वो तो आपको बेसिकली बेसिक रिक्वायरमेंट्स यू मस्ट हैव टू फॉलो, बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। सो इन जनरल अगर मैं बात बोलूं, इन जनरल अगर मैं बात बोलूं, टेस्ट डेटा हो गया है ना, ठीक है, वो छोड़ दो। तीसरा है आपका टारगेट मीन स्ट्रेंथ फॉर द मिक्स प्रोपोर्शनिंग, वही चीज आ गई, आपका एफएम कितना है, दिस इज द एफएम, दिस इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ एफएम, दिस इज सिग्मा, एवरीथिंग इज सेम, वही 48.25 आया था ना, यहां पर भी उतना ही आएगा, और कुछ चेंज थोड़ी हुआ है ना, और कुछ चेंज थोड़ी हुआ बेटा, यहां पर भी उतना ही आएगा आपका, क्लियर। हाँ जी, तो अब B4 क्या आया, वाटर कंटेंट, सॉरी वाटर सीमेंट रेशियो आपका यू हैव टू सिलेक्ट कर लो भैया, वाटर सीमेंट रेशियो सिलेक्ट कर लो जी, आ जाओ, सिलेक्शन ऑफ द वाटर सीमेंट रेशियो 0.45, 0.40 मान लो एक्सपीरियंस के आधार पर। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक मैंने आपका सीमेंट जो मानी, अज्यूम जो किया, अभी तक तो कैलकुलेशंस पे तो आई नहीं है, 320 से 450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वाटर सीमेंट रेशियो 0.40, टारगेट मीन स्ट्रेंथ 48.25 मेगापास्कल, नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट से, नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट से आपका बोलो 20 mm, और बाकी मेरी स्पेसिफिक ग्रेविटी सारी चीजें आपकी बराबर है, बाकी हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एवरीथिंग इज बेसिकली सेम, ओके, एवरीथिंग इज बेसिकली सेम। उसके बाद हमारा क्या स्टेप आता था भाई, उसके बाद हमारा क्या स्टेप आता था, सिलेक्शन ऑफ द वाटर कंटेंट, वही टेबल नंबर 2 है वाटर कंटेंट की, 20 mm के लिए 186 लीटर था ना,
20 mm के लिए 186 लीटर, 25 से 50 mm स्लम्प के लिए 197 लीटर हो गया। 100 mm का स्लम्प है ना। सुपर प्लास्टिसाइजर्स एंड द मिनरल एडमिक्सचर्स बोथ आर यूज्ड। वहां पर 20% रिडक्शन था, यहां पर 30% रिडक्शन पे वही 140 रिडक्शन आ गया। 140 लीटर आया था ना वहां पर। हाँ जी। कैलकुलेशंस, नेक्स्ट वन, कैलकुलेशंस ऑफ द सीमेंट एंड द फ्लाई एश कंटेंट। इसमें चेंजेस आ गए। अब यहां पर हम लोगों को फ्लाई एश विल ऑल्सो बी कैलकुलेटेड और नीड टू बी कैलकुलेटेड। ओके, वाटर सीमेंट रेशियो मेरा 0.40, सीमेंट कंटेंट ठीक है 350 आ गया, जो कि मेरा 320 से 450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच में है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच में है। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच में है। तो हमारा यहां पर बेसिकली इन जनरल आपको ओके मानना पड़ेगा। सीवीए कंडीशंस पे 320 है, ठीक है, ओके आ गया। नाउ टू प्रोपोर्शन ए मिक्स ऑफ एयर कंटेनिंग फ्लाई एश, फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी सजेस्टेड। फ्लाई एश का बेसिकली देखो, ओपीसी में 100% सीमेंटीशियस कंपाउंड्स होते हैं। पीपीसी में 20 to 25% पोजोलोनिक मटेरियल। मैं यहां पर एक किसी भी मटेरियल का नाम नहीं लिखूंगा, समझ रहे ना, कि आप ये सोचो कि मैं फ्लाई एश लिख दूं या फिर कैल्साइंड क्ले लिख दूं या फिर राइस हस्क एश लिख दूं या फिर सुर्खी लिख दूं, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करेगा। ओके, तो आपका पोजोलोनिक मटेरियल 20 से 25% एंड 75 से 80% सीमेंटीशियस मटेरियल रहेगा पीपीसी में। तो इनिशियली यू हैव टू डिसाइड द परसेंटेज ऑफ द फ्लाई एश टू बी यूज्ड बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स। अरे मेरे दोस्त, मेरे गढ़ मित्र, अगर क्वालिटी ऑफ द मटेरियल चाहिए तो पीपीसी की यूज कर रहे हो भाई, या ये स्कोर भी पागल हो चुका है। तो क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स चाहिए तो पीपीसी की यूज कर रहे हो, क्यूरिंग से डर रहे हो ना भाई। अगर आपकी ओपीसी यूज करोगे तो प्राइस ज्यादा मांगेगी, ज्यादा मोर अमाउंट ऑफ द क्यूरिंग कंपाउंड विल बी यूज्ड। क्यूरिंग कंपाउंड आपका ज्यादा यूज होगा ना, या फिर जूट बे क्यूरिंग लगा लो, वाटर स्प्रे क्यूरिंग लगा लो, कोई भी क्यूरिंग लगा लो, क्यूरिंग देनी पड़ेगी आपको अगर ओपीसी यूज करोगे तो। आप पीपीसी यूज करोगे कम क्यूरिंग में काम चल जाएगा। लेकिन बेटा आपको सब सीमेंट पढ़ाई, इतना डीप में पढ़ाया, तो ठीक है पीपीसी यूज कर लो, स्ट्रेंथ लेट अचीव होगी, 3 महीने के बाद तो जाके बराबर ही हो जाएगी स्ट्रेंथ, है ना। हाँ जी। एनीवेज, in certain situations increase in cementitious material content may be warranted. A decision on the increase in the cementitious material content may be based on the experience and the trials, है ना। तो आपने कोई ना कोई तो आपका जनरली you have to decide the, you can say, कुछ ना कुछ तो आपका अमाउंट आपको रखना पड़ेगा, 10%, 20%। दिस इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल इज विद इंक्रीज ऑफ द 10% सीमेंटीशियस मटेरियल कंटेंट। तो सीमेंटीशियस मटेरियल कंटेंट मैंने 350 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आया था ना बेटा। सीमेंट हमारी कितनी आई थी? 350 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फ्लाई एश के नाम का मैंने 10% इंक्रीज कर दिया, ठीक है। वाटर कंटेंट
140 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो वाटर सीमेंट रेशियो 0.40 की बजाय 0.364 रह गया। तो फाइनली मेरा वाटर सीमेंट रेशियो बेसिकली gets changed from 0.4 to 0.364 as the water cement ratio decreases, strength increases। ओके हाँ जी, फ्लाई एस को हमने लिया 30% ऑफ द टोटल सीमेंटीशियस मटेरियल कंटेंट। टोटल सीमेंट आई थी मेरी 385, 30% लिया 115 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब मेरी टोटल सीमेंट कितनी लगेगी ओपीसी? 385 में से 115, 270 वो यूज कर लो और आपका 115 ये यूज कर लो। सेविंग ऑफ सीमेंट वाइल यूजिंग फ्लाई एस, 350 माइनस 270, दैट इज यू कैन से 80 किलोग्राम एंड फ्लाई एस इज बीइंग यूटिलाइज्ड 115 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहां पर मैं फिक्स करके चल रहा हूं जी, ओपीसी सीमेंट 217 किलोग्राम, 70 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड फ्लाई एस फाइनल रिजल्ट में आ गया ये 115 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 115 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो फ्लाई एस का प्रोपोर्शन आ गया एंड यू कैन से आपका सीमेंट का प्रोपोर्शन आ गया। 7वां स्टेप आ जाता है जी, प्रोपोर्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोर्स एग्रीगेट्स एंड द फाइन एग्रीगेट कंटेंट। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, सारी चीजें वही 0.50 से 60 के बीच में एवरीथिंग बराबर है जो आपको पहले पढ़ाया। तो यहां पर हमारा वही 0.56 सेम आया, 0.62 आया था। तो जनरली अगर मैं कंक्लूड निकालूं तो कोर्स एग्रीगेट्स की परसेंटेज 56% एंड फाइन एग्रीगेट्स की परसेंट 44% विद रिस्पेक्ट टू ऑल इन एग्रीगेट्स। कर लिया फिक्स? हां जी, हो गया काम। तो वो 44% आ गया। अब हमारी आती है बेटा मिक्स कैलकुलेशंस। अब हमारी आती हैं जी मिक्स कैलकुलेशंस। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट शैल बी एज फॉलोज। हां जी, आपका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए सीमेंट, मास ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट मल्टीप्लाइड बाय द रो डब्ल्यू, मल्टीप्लाइड बाय द रो डब्ल्यू। आइए, अरे मेरे प्यारे दोस्त गण मित्र, सीमेंट कितना यूज हुआ है? 270 है ना? तो वैल्यू इज इक्वल टू 0.086 मीटर क्यूब। सीमेंट यहां पर कम यूज हुआ ना बेटा, पहले वाले केस में सीमेंट वाज यूज्ड मोर, इस वाले केस में सीमेंट इज यूज्ड लेस। वहां पर 350 किलोग्राम सीमेंट थी, हमारी सीमेंट कितनी है? 270 किलोग्राम है। तो यहां पर हमें फ्लाई एस की वॉल्यूम भी निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर हमें फ्लाई एस की वॉल्यूम भी निकालनी पड़ेगी। तो फ्लाई एस की वॉल्यूम के लिए मास ऑफ फ्लाई एस डिवाइडेड बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लाई एस मल्टीप्लाइड बाय द रो ऑफ द वाटर, मल्टीप्लाइड बाय द रो ऑफ द वाटर। ओके, फ्लाई एस कितना यूज हुआ भाई? बोलो, बताते जाओ जल्दी जल्दी। फ्लाई एस, हाउ मच अमाउंट ऑफ द फ्लाई एस विल बी यूज्ड? देखिए, मास ऑफ फ्लाई एस वाज 115 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी ऑफ द फ्लाई एस वाज 2.2। देखो, आइए यहां पर अगर मैं सारी स्पेसिफिक ग्रेविटीज पे आऊंगा, ओ भाई मेरे दोस्त, यहां पर देखो कितने अच्छे अच्छे अक्षरों में लिखा हुआ 2.2।
यहां पर 1.14 टू 1.15, कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स 2.74, सीमेंट 3.15। ओके, नो इश्यू। हाँ जी, आइए आगे चलते हैं। तो भैया ये 2.2, अरे मल्टीप्लाइड बाई 1000 कौन करेगा? मैं करूंगा। आइए, आंसर कितना आया? लेट मी चेक द आंसर, एंड द आंसर इज 0.052 मीटर क्यूब है। ओके, 0.052 मीटर क्यूब। सीमेंट आ गया जी 0. देखिए, ये दिस वाज द मास ऑफ सीमेंट होल डिवाइडेड बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट multiplied by the rho of the water, multiplied by the density of the water. Okay, now volume of the water, next step is volume of water. Okay, the very simple formula is there, mass of water divided by the specific gravity of the water multiplied by the density of the water. water हमारा पहले कितना आया था? that was 140 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आया था कि नहीं आया था? तो 140 1000, that is 0.140 मीटर क्यूब, 0.140 मीटर क्यूब। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ द केमिकल एडमिक्सचर्स, इस पेज को डिलीट कर देते हैं, क्या करेंगे इसका रख के। वॉल्यूम ऑफ द केमिकल एडमिक्सचर्स। ओके, हाँ जी, देखिए ध्यान से, इस पेज को मैं दोबारा बना देता हूं। ई वॉल्यूम ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर्स, केमिकल एडमिक्सचर्स एट द रेट ऑफ 2% ऑफ सीमेंटीशियस मटेरियल्स। हाँ जी, फिफ्थ स्टेप, सीमेंटीसिस मटेरियल। भैया जो सीमेंटीसिस मटेरियल था ना, वो तो 350 किलोग्राम ही पर मीटर क्यूब था। वो तो उसको बाद में बाइफरगेट किया कि उसमें से आप 270 सीमेंट यूज कर लो तो फ्लाईएस का 115 यूटिलाइज हो जाएगा, उतनी स्ट्रेंथ दे देगा, वो तो बाद की बात है। तो मास ऑफ एडमिक्सचर divided by the specific gravity of admixture, chemical admixture multiplied by the rho of water। 2% 7 बनता है ना, 2% is equal to 0.02 इंटू 350, 7 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो वैल्यू आ गई हमारी 0.07 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट्स, ऑल इन एग्रीगेट्स, एक में से क्या क्या घटा दो, आजो घटाएंगे, 1 माइनस जो भी है सारे घटा दो। चलो घटाने चलते हैं, आइए। इज इक्वल टू 1 माइनस, उल्टे आते हैं, सीमेंट इज 0.086, 0.086 and fly S is 0.052, 0.052। आगे वाटर इज 0.140, 0.140 एंड एडमिक्सचर इज 0.007, 007। सब घटाने के बाद लेट मी चेक द आंसर, एंड आंसर इज 0.715 मीटर क्यूब। ये ऑल एग्रीगेट्स आ गए। कोर्स एग्रीगेट्स 56% एंड फाइन एग्रीगेट्स 44%। 56% है ना बेटा, आ जाओ। हाँ जी, कोर्स एग्रीगेट्स 56%, फाइन एग्रीगेट्स 44%। आ जाओ, निकाल लेते हैं कोर्स एग्रीगेट्स। सिंपल सा फार्मूला है, सब इरेज कर देते हैं, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। हाँ जी, आओ डिस्कस करेंगे।
देखो, देखिए बेटा, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स, ओके, देखिए मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स 56% की रेंज है ना बेटा, कैलकुलेट कर लो भाई, आ जाओ कैलकुलेट करेंगे। मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स इज इक्वल टू, ध्यान से समझ के चलना, जी ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स, वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट्स। What is the volume of all aggregates? That is VA. Volume of all aggregates, percentage of coarse aggregates multiplied by the rho of water. G of coarse aggregates is 2.74. Volume of all aggregates is 0.715. Percentage of coarse aggregates is 56%, 0.56. And rho of the water is 1000. Let me calculate the answer. What will be the coarse aggregates? And that is 1097 किलोग्राम। ओके, पर मीटर क्यूब की कैलकुलेशन चल रही है जी। सिमिलरली if you talk about the mass of the fine aggregates, so mass of fine aggregates will be equal to the specific gravity of the fine aggregates into density of the water into percentage of the fine aggregates into volume of all aggregates. Volume of all aggregates. These are the two formulas. Okay. Now this is the one formula. This is the second formula. Okay. Hanji. So my dear students, if I calculate the values, so the fine aggregates is also having the same specific gravity, rho of water as 1000, and the percentage of the fine aggregate was 44%, and the volume of all aggregate was 0.715 meter cube. After calculation, I found the answer as 862 kilogram. Answer. So beta, yahan par mix proportion for the trial number 1, because this was our trial number 1 or trial mix number 1 is there, because this was our trial mix number 1 is there. Okay. हाँ जी, सीमेंट मेरा 270 आया, बिल्कुल सही है। फ्लाई एस 115 आया, बिल्कुल सही है। वाटर 140 आया, बिल्कुल सही है। फाइन एग्रीगेट 862, कोर्स 1097, केमिकल 7.7। 7.7 कहां से आ गया है? 7.7 कहां से आया भाई? नहीं 7 ही आएगा रे, तो ये 7.7 नहीं आएगा, ये केमिकल एडमिक्सचर 7.0 ही आएगा। वो तो हमारा 7.0 ही आया ना आंसर। ओके, नो इशू। हाँ जी, 7.0 वाटर सीमेंट रेशियो 0.364 ना कि 0.40। 0.40 नहीं है, 0.364 आया। हो गया काम खत्म, है ना। एग्रीगेट जो है ना वो एसएसडी कंडीशंस में होने चाहिए, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशंस, दोनों केसेस में, है ना। वहां पर भी लिख देता हूं, नो इश्यू। एग्रीगेट्स मस्ट बी इन सैचुरेटेड ड्राई और सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशंस, लिख देता हूं यहां पर। कहां पर लिखें? यहां पर लिख देते हैं ना। हाँ जी, एग्रीगेट्स शुड बी इन SSD conditions. That is, SSD is saturated surface dry condition. Okay, हाँ जी, ये आपका है ना। तो अब जो सब्सिक्वेंट ट्रायल मिक्सेस यहां पर आपको करने हैं, जो आपको यहां पर सब्सिक्वेंट ट्रायल मिक्सेस जो आपको करने हैं, दैट मस्ट बी डन विद द, यू कैन से 10% वेरिएशन इन वाटर सीमेंट रेशियो। ओके, हाँ जी, वाटर सीमेंट रेशियो के
10% वेरिएशन के साथ आप सब्सिक्वेंट ट्रायल मिक्सेस कर सकते हो। ओके, एक नोट लिख लेते हैं। Note number 1, aggregates should be in SSD condition, saturated surface dry condition, same चीजें हैं। Number 2 is, you can say, for the subsequent trials shall be done with a variation of 10% in the water cement ratio. With a variation of plus minus 10% in the water cement ratio. So my dear students, along with this we have completed the, you can say, design mixes of M40 and M40 grade using the PPC cement and using the OPC cement. If anybody is having any kind of the doubt in these design mixes, you can ask me. फोन नंबर सबके पास है, ठीक है ना। एंड अगर और डिजाइन मिक्सेस के बारे में डिस्कस भी करना चाहते हैं तो हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे फिर मिलेंगे, ठीक है ना। फोन नंबर है आपके पास, किसी भी डिजाइन मिक्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड कीप लर्निंग विद कैरियर विल। थैंक यू।